Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 2nd of September 2023. From today's newspaper, we will be discussing about Islamophobia, the inflation. The editorial talks more about the growth or the GDP and the estimates of GDP in our country. So somehow it would be related to the inflation. Then about the China's economic slowdown, and there is small editorial which talks about the restoring popular rule in Jammu and Kashmir and its statehood ought to be a priority. So this topic we had already covered in my last video. Whoever wants to know about the historical perspective of Jammu and Kashmir, the reason why it was provided the special privileges or why it was turned into the union territory and how it was turned into union territory by removing Article 370, by removing Article 35A, right? Sorry, 35A. So for this information, please just go to the last video of mine and you can get there. So before we move forward for main discussion, this is our channel IAS Cafe. Please do subscribe it, and if you're really liking our video, just like and share. Now, coming to the main topic, that is the Islamophobia. This editorial talks about the Islamophobia in our country, India. And here, the writer is basically comparing the nature of Islamophobia in India with respect to the other countries, how it is distinct in different regions of the globe or the world, what is exactly the meaning of Islamophobia, why Islamophobia is different in India, what are the examples of the Islamophobia in India, and what actually leads to the cases related to Islamophobia in India. So, this is everything we will be discussing in this topic. Okay. First, if we talk about the definition as per the Oxford English Dictionary of Islamophobia, so this word means intense dislike or fear of Islam, especially as a political force, hostility, or prejudice towards the Muslims. So, as we know, there are many religions. There is a Hindu religion, Muslim religion, Christianity is there, right? Then Sikhism is there, and many other religions are there. So, if we talk about Islamophobia, here we are referring to an intense level of, extreme level of hate with respect to the fear of Islam. Okay, especially with respect to the political force, the hostility or the prejudice towards the Muslims. Then second, the video clip of an incident that happened in the Khubapur village in the Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, where a Muslim boy was slapped by his classmates on the instruction of the teacher is Islamophobic. यहाँ राइटर जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाह रहा है कि इस्लामोफोबिक क्या है. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि एक वीडियो जो है वायरल हुई है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर है वहां पे टीचर के इंस्ट्रक्शन देने पे कुछ लड़के एक मुस्लिम लड़की को थप्पड़ मारते हैं. तो ये एक उदाहरण सेट करता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है हमारी कंट्री में इस्लामोफोबिया को लेके कि जो इस्लामोफोबिया है वो किस तरह से है. और अगर हम स्टेट के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो टॉक अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, देन इट इज अ सीरियस थ्रेट टू द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया. तो ऐसे केसेस जब हमको देखने के लिए मिलते हैं, द केसेस लाइक इस्लामोफोबिक, उसमें जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स एकदम नेगेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो सेक्युलरिज्म है उसको खतरा है. सेक्युलरिज्म, दैट मीन्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 25 से 28 कि हमारी कंट्री में स्टेट जो है आपको जो रिलीजन फॉलो करना करो उसमें स्टेट आपको नहीं रोकेगा. अगर आपको हिंदू के बारे में रिलीजन फॉलो करना आप कीजिए, मुस्लिम्स के बारे में करना कीजिए, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, आपको जो रिलीजन फॉलो करना कीजिए,
दैट इज इंडियन काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म. जब आप सोशल सोसाइटी के टॉपिक्स पढ़ोगे तब वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे द मीनिंग ऑफ सेक्युलर एंड हाउ इंडियन सेक्युलर इज डिफरेंशिएटेड और डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, राइट. तो यहाँ पे जब इस्लामोफोबिक के एग्जाम्पल्स के बारे में बात हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी शो हो रहा है दैट it is a serious threat with respect to the secularism in India, right? Now let's focus on the concepts and explanations with respect to the Islamophobic. Islamophobic ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है ना. चाहे रेसिज्म हो या रिलीजन को लेके टारगेट करना हो, ये आपको दुनिया के हर कोने में मिलेगा. सिमिलरली इस्लामोफोबिक जो है ग्लोबल फिनोमेना है. बहुत सारी कंट्रीज है जहां मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन. So we can consider as that Islamophobic is a global phenomena. But the sources and issues from which it emanates vary from region to region. लेकिन इस्लामोफोबिक जो फिनोमेना है वो तो सब जगह चल रहा है, लेकिन इस्लामोफोबिक का जो सोर्स है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसका जो कॉज है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है कि इन सब रीजंस की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इस्लामोफोबिक फिनोमेना जो देखने के लिए मिल रहा है वो हर कंट्री में अलग है. दैट मीन्स द phenomenon is everywhere. The Islamophobic is seen in every part of the globe, but the reason, the causes, the effects, the issues which is causing this Islamophobic is different, right, in every part of the globe. So what is being witnessed in India is quite different from what is seen in the West. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है इस्लामोफोबिक की जो रीजन है वो टोटली अलग है एज कंपेयर टू इंडिया के अंदर जो इस्लामोफोबिक के रीजन हो रहे हैं. इंडिया में एक तरफ आपके पास इस्लामोफोबिया है, रिलीजन को लेके जो दंगे होते हैं, कम्युनलिज्म है, इंटॉलरेंस है, ये कुछ की कंसेप्ट है जो कि कहीं ना कहीं आप हिंदू और मुस्लिम के रिलेशन के साथ लिंक कर देते. Of the three, the use of the notion of the communalism has disproportionately dominated scholarly works, particularly during the 20th century. So each is freestanding concept but possesses overlapping attributes. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, intolerance. Intolerance एक independent concept है. For example, it could be regarding anything. Being nepotism, someone is intolerant. Being Hindu, someone is intolerant of Muslim. Being Muslim, someone is intolerant of anything. Being the Arya Samaj or something, कि आप गौ रक्षक हो, cow protector हो, you are intolerant of eating beef. So basically you're targeting the Muslims. So intolerant किसी भी reason से हो सकता है. कम्युनलिज्म किसी भी रिलीजन के दंगों को लेके हो सकता है, एंड इस्लामोफोबिया जब आप मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं. तो तीनों एक अलग कंसेप्ट है बट कहीं ना कहीं ये आपस में ओवरलैप करते हैं. ये तीनों कंसेप्ट की आपस में ओवरलैपिंग है. So it is only by unraveling these attributes that the threat that Islamophobia poses to India's secular social order can be understood. So with its the pejorative connotation, the concept of communalism is applied exclusively in a South Asian concept. The concepts of Islamophobia and intolerance are universal in the usage. How does the India, देखो कितना प्यारा टाइटल यूज किया है, that Indian brand of Islamophobia, because राइटर ने पहली लाइन में क्लियर किया था इस्लामोफोबिया इज a global phenomenon, बट जो रीजन है वो हर कंट्री की जगह में अलग अलग है. तो इंडिया के लिए अंदर जो इस्लामोफोबिया है दे आर रिफरिंग इट एज इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लामोफोबिया. So how does this Indian brand of Islamophobia vary from the Western one? फॉर इंस्टेंस देखो अब किस तरह से अलग है. इंडिया के अंदर रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए बात करते हैं. वॉवलेंसी जो कि एक वायलेंट एक्सप्रेशन है. गौ हत्या जब भी आप बोलते हो कि हिंदू है उनके लिए गाय भगवान के समान है, तो अगर उनको लगता है कि जो गाय है उनको काट के मार के मुस्लिम्स खा जाते हैं तो उस तरह से वो क्या एक वायलेंट एक्सप्रेशन के तौर पर लिंचिंग करते हैं, टारगेटेड मुस्लिम्स को मारते हैं. ठीक है, तो एक तरह का फॉर्म हो गया इंडिया में इस्लामोफोबिया का. So, given the rising number of Muslim victims from the cow vigilantism,
It needs to be seen as Islamophobia by other means. तो जिस तरह से डेटा बोल रहा है, द फैक्ट if you look at the facts figures the data, तो ये जो केसेस है कि काउ विजिलेंटिज्म के कारण इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, तो आपको उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, ठीक है? तो बट इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स the cow slaughter is neither the source nor the issue of Islamophobia. लेकिन अब आप वेस्ट कंट्रीज में जाइए, आप यूरोप में जाइए, यूनाइटेड स्टेट में जाइए, वहां पे भी मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, वहां पे भी इस्लामोफोबिया का फिनोमेना देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहां पे ये काउ स्लॉटर मुद्दा नहीं है। वहां पे तो चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी जो भी हो, आपको जो खाना खाइए, आपको बीफ खाना खाइए, आपको पिग खाना खाइए, cow slaughter is not the reason of Islamophobia in the Western countries, but India, yes, it is a major cause. अगर हम 2009 में फर्स्ट फेडरल रेफरेंडम के बारे में बात करें, it banned the minaret of the masjid was passed and an Edgar Kenson committee campaign forced to describe minaret as being the reminiscent of missile. In New York, the controversy regarding the Ground Zero Mosque was driven by Islamophobic arguments. It was argued, among the other things, that it would mean disrespecting the victims of 9/11, as if entire Islam is responsible for the violence committed by a handful of disoriented Muslims. 9/11 का जो अटैक हुआ था, उसमें जो कल्प्रिट थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। अब उसको लेके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर इस्लामोफोबिया जैसी चीज हो रही है, एज इफ कि जैसे पूरे मुस्लिम समाज ने ही वो मिलके कोई पाप कर दिया हो, तो इट इज अ रॉन्ग थिंग। आप अगर कोई कल्प्रिट है, आपको उसका रिलीजन कास्ट नहीं देखना चाहिए, राइट? मान लो कि वो एक अटैक हिंदू ने किया होता, तो क्या पूरी हिंदू रिलीजन को टारगेट कर देते? क्या अगर वो क्रिश्चियनिटी की किसी बंदे ने किया होता, तो क्या पूरे क्रिश्चियनिटी का रिलीजन को टारगेट कर देते? नहीं ना। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्री में रीजन ऑफ इस्लामोफोबिया और टारगेटिंग द मुस्लिम इज व्हाट इट इज द 9/11 अटैक और समथिंग रिलेटेड टू द टेररिज्म, बट नॉट द काउ स्लॉटर। इंडिया के अंदर दो मेजर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के झगड़े को दिखाता है। बाबरी मस्जिद का केस है आपके पास, ज्ञान वापी जो मस्जिद का केस है वो, लेकिन but these are more related to a power struggle that pertains to Muslim rulers and consequence of their actions. So Indian Muslims do face the impact of these disputes, but Islamophobia is not purely derived from the architectural structure as in the case in the Europe. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया जो है, कुछ आपके पास टेररिस्ट एक्टिविटीज है और 9/11 जैसे अटैक है, मस्जिद का बनना है, उन सबको लेके, यानी कि जो आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं, उन सबको लेके यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, वो रीजन वहां पे इस्लामोफोबिक के हैं। इंडिया के अंदर जो काउ स्लॉटर जैसा मुद्दा है, वो थोड़े से बड़े रीजन हो जाते हैं इस्लामोफोबिक को लेकर। तो इश्यूज क्या है, मुस्लिम, इस्लाम, व्हाट इज ऑल दिस, हम यहाँ पे बात करते हैं। So there is Islamophobia reflected in the use of loudspeaker during the azan. बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्लामोफोबिक का केस देखा गया जब ये बोला गया कि जो अजान होती है मस्जिद के अंदर, मेरा किसी को हर्ट करने का यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, जो यहाँ पे बताया गया है एक ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल था, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू। That is not my personal point of view. That is the point of view with respect to the editor. So please be rational while listening the video and try to gain different perspectives rather than getting in the conflict. Okay. Now coming back to the main topic. तो यहाँ पे एक मुद्दा उठा था कि जब मुस्लिम समाज के लोग अजान करते हैं तो वो बहुत ही लाउड स्पीकर में उसको बजा रहे होते हैं, उसको बैन कर देना चाहिए। आप बताइए क्या ये सही है? क्या यहाँ पे आपको क्या लगता है इंटेंशन यहाँ पे क्या साउंड पोल्यूशन को बचाना है या फिर मुस्लिम को टारगेट करना है या फिर इस्लामोफोबिक को टारगेट करना है? There is Islamophobic reflected in the use of loudspeaker during Azan. In India, a country where there is a constant automobile honking and other forms of major noise pollution in many of its towns and cities, it is absurd to argue that the use of loudspeakers for Azan for a few minutes causes intolerance noise pollution that calls for a law. तो राइटर का कहना है कि इंडिया ऐसा देश है जहां पे कॉन्टिन्यूसली रोड पे जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां चल रही है, जो एरोप्लेन चल रहे हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन है। अब इस सीरियस मुद्दे को इग्नोर करके आपका ये कहना है
कि अजान जो कि हार्डली 2 या 5 मिनट के लिए होती है, उससे पूरे देश भर में नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, आप उसको बैन कर दीजिए। इज इट अ वैलिड पॉइंट? जितने भी टेम्पल्स है, क्या वहां पे हनुमान चालीसा नहीं चलती है? क्या वहां पे लाउड म्यूजिक पे कोई भजन कीर्तन नहीं होते हैं? राइट? क्या इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल की वजह से पोल्यूशन जो है, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा नहीं है? देन व्हाई वी आर इग्नोरिंग द सीरियस इशू and we are just targeting the one community to ban their azan sound? Is that 2 minute, 5 minute azan is really the cause for the noise pollution? No. That means there is a some definitely you're targeting a particular community, right? So there were controversies over the issue in the Uttar Pradesh and Maharashtra. More than 11,000 loudspeakers were removed from all the religious places, both Hindu and Muslim, in 2022 in Uttar Pradesh. So likewise, the veil has been an Islamophobic issue in the Europe. It is the hijab controversy in Karnataka. So similarly, अब आप देखो कि कर्नाटक स्टेट में हिजाब कंट्रोवर्सी आ गई कि आप स्कूल में जा रहे हो तो ये बुरके, अरे देयर आर सर्टेन मेजर इश्यूज टू रिजॉल्व। आप पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया के अंदर एवरी इशू जो है उसको मुस्लिम के इशू को लेकर क्यों फोकस में डाला जा रहा है? और भी तो सीरियस मुद्दे हैं हमारी कंट्री में। जॉब्स को लेकर क्या न्यूज के अंदर कोई डिस्कशन होता है? जितने भी न्यूज चैनल्स है, क्या वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कितने डिबेट एंड डिस्कशन होते हैं? हेल्थ स्टेटस को लेकर कितने डिबेट एंड डिस्कशन है? हॉस्पिटल्स को लेकर कितने डिबेट एंड डिस्कशन है? पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, मॉनसून, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीआरपी दैट हिंदू मुस्लिम जहाँ पे आ जाता है, जो न्यूज चैनल्स उनको कवर करती है, वाई? बिकॉज एक तरह से एंटरटेनमेंट बन जाता है लोगों के लिए, यू गेट मोर टीआरपी ओवर दैट। So India needs to come out from this controversy things, and the India really needs to do something on what? To focus on the real issue. There seems to be a growing list of common issues that drive Islamophobia in India and the Europe. But everything concerning Muslims cannot be viewed as Islamophobia either. अब राइटर कह रहे हैं कि हर एक चीज जो कि मुस्लिम्स को लेके कंसर्निंग है, आप उसको इस्लामोफोबिक को भी नहीं ले सकते। कुछ इश्यूज है जो कि मुस्लिम्स के मुद्दे हैं, मुस्लिम्स के इश्यूज है, बट आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि इस्लाम धर्म को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि Hindu rights argument against the Urdu as a language of Muslims, which it is not. Muslim across the world, give me a second. Now, Muslims across the world speak a variety of languages based on a number of factors. In that sense, Urdu has a very limited relationship with the Muslim identity. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कुछ जो इश्यूज है वो सिर्फ मुस्लिम्स के हैं, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हम इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू राइट्स एक आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट द उर्दू एज ए मुस्लिम लैंग्वेज। तो राइटर का कहना है कि मुस्लिम्स पूरी वर्ल्ड में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान उर्दू ही बोल रहा है। तो उर्दू लैंग्वेज को आप मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं बना सकते। It was the gross arrogance of the erstwhile West Pakistan Muslim allies bullying the Bengali Muslims of then East Pakistan to embrace the Urdu that fueled the Bengali nationalism. Therefore, the Hindu rights attempt to raise the Urdu or see it as a language of Muslims would be explained more accurately as Muslim phobia than Islamophobia. Now, it is as a part of the state policy. In the wake of the growth of Islamophobia in India, Hindutva politics and the V.V. Savarkar's Essential of Hindutva, published almost at the end of Khilafat movement, have played a major role. इंडिया के अंदर जैसे ही इस्लामोफोबिया बढ़ता हुआ दिखा है, हिंदुत्व जो पॉलिटिक्स के लोग थे या फिर जो वीवी सावरकर मोस्टली उनका जो एसेंशियल था हिंदुत्व को लेके, उन्होंने पब्लिश किया कि ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट हैव प्लेड अ मेजर रोल। अकॉर्डिंग टू दी सावरकर, the Indian Muslims cannot be completely loyal to India. वीवी सावरकर के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जो इंडियन मुस्लिम्स है
वो पूरी तरह से इंडिया कंट्री को लेके लॉयल नहीं हो सकते। क्यों? उनके जो मेजर रिलीजियस प्लेसेस है, मक्का मदीना है, जहाँ हज यात्रा करते हैं, जहाँ वो जैसे हम पूजा करते हैं वैसे भी वो दुआ मांगने जाते हैं, वो इंडिया के बाहर है। But the foot soldier such as the Monu Manesar and the Babu Bajrangi might not have an idea what Savarkar's Hindutva says. Islamophobia in India existed long before the Savarkar wrote his text. What is the difference then between the present day Islamophobic inspired by Hindutva and during the colonial India or Indian before? तो फिर अंतर क्या है कि आज का जो इस्लामोफोबिक है जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी से आया है, और पहले जो कोलोनियलिज्म के टाइम पे जो आपके पास इस्लामोफोबिक है उस टाइम पे जो है उसका डिफरेंस क्या है? तो द डिफरेंस इज दैट जो सावरकर है उनकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी, उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल क्लास को काफी ज्यादा इंस्पायर कर दिया, दैट wishes to weaponize Islamophobia and make it a part of a state policy. देखो, जब सावरकर जी ने अपनी स्टेट पॉलिसी के तौर पे ये स्टेटमेंट दिया कि जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को इन्होंने इंस्पायर किया और कहा कि कभी मुस्लिम्स इंडिया को लेके लॉयल नहीं हो सकते क्योंकि उनका रिलीजियस प्लेस बाहर है इंडिया के, तो यहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने एक एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक वो बीज डाल दिया, एक इंस्पिरेशन डाल दिया कि यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी का वो बढ़ के आने लगे। The state responses on Azan or ban on the cow slaughter इसके सीधे सीधे रिजल्ट दिखते हैं। So this is what poses a mortal threat to the secular fabric of Indian state and its society at a large. Yeah. So this is it about the Islamophobia. Just take a 1 minute and go through this. If you have any doubt, please do write down in the comment section and please ask it. Okay. Now coming to the second topic, inflation. The monsoon pause, the fresh risk even as a residual stress lingers in the economy. India का जो economy है, when we talk about the gross domestic product, that means the value of the total goods and services produced, right? We are not talking about the GNP. GNP जो है इंडिया की टेरिटरी के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, but GDP could be everywhere. Okay? तो इंडिया का जब आप जीडीपी मेजर करते हो एज वेल एज द ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी उसकी कितनी वैल्यू ऐड की है, वो इस साल का जो पहला क्वार्टर है उसमें 7.8% इंक्रीज उसमें आपको देखने के लिए मिला। तो ये बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट अपटिक हुआ है पिछले 4 क्वार्टर, बट थोड़ा सा कम हुआ है जितना आरबीआई ने एस्टिमेट दिया था, है ना। देखो आपके पास आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 से 2014 के 24 में एक ओवरऑल पूरे साल में उन्होंने बोला कि 6.5% की जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलेगी। इट वॉज एन एस्टिमेशन विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्लीट ईयर, और इस पूरे साल के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उस फर्स्ट क्वार्टर में अराउंड 8% जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिली, लेकिन एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई है? 7.8%। ठीक है, आई रिपीट, आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई हैज एस्टिमेटेड दैट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 द एस्टिमेटेड जो ग्रोथ होगी वो आपने आरबीआई ने बताई 6.5% की ग्रोथ, और आपका जो क्वार्टर वाइज उन्होंने एस्टिमेशन बताया, इन द फर्स्ट क्वार्टर द आरबीआई सेड दैट 8% वुड बी द ग्रोथ, बट एक्चुअली जो ग्रोथ हुई है वो 7.8% हुई है इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे राइटर का कहना है इट इज अ गुड ग्रोथ, बट थोड़ी सी कम रह गई जितना आरबीआई ने यहाँ पे एस्टिमेशन दिया, है ना। दैट इज this is the highest GDP uptick in the 4 quarters, but slightly underwhelming relative to the 8% growth
estimated by the Reserve Bank of India. So the central bank's 6.5% growth projection for 2023 and 24, the factors in a decline in the uptick rate in each of the subsequent quarters of this year, culminating at 5.7% of the final quarter. One will have to wait till October's meeting. Now, हर आपके पास आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनकी जब मीटिंग होगी, इस बार की जो कमेटी है वो अक्टूबर में मीट होगी, तो वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा कि पूरी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको ऑब्वियसली वो कैलकुलेट करेंगे, वहां पे कुछ आपको पता चलेगा कि कितने हम पानी में है, व्हाट आर द फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड एवरीथिंग, है ना. So, India remains the fastest growing major economy by a comfortable margin, with China recording a 6.3% rise in the same quarter. हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी आई है आपके पास 7.8%, है ना. तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया है आपके पास फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वो है 7.8%. चाइना का जो ग्रोथ रेट आया है वो है 6.3%. यानी कि इंडिया अभी fastest growing economy है. Okay, so India is the fastest growing major economy. और मार्जिन भी अच्छा खासा है, ये 6.3 है और यहाँ पे क्या है 7.8. एंड फेसिंग अ फ्रेश स्लो डाउन. ये हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी करने ही वाले कि चाइना में जो स्लो डाउन हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. But the months ahead could prove to be more challenging, with global headwinds that have hit the goods export and manufacturing already, combining with the domestic pressures from the renewed spurt in inflation and the likelihood of a weak monsoon playing short with the crop yield. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं राइटर कि चलो फर्स्ट जो क्वार्टर था वो तो खुशखबरी, हमारे पास अच्छी खासी 7 पॉइंट समथिंग ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिला है. बट आगे के जो क्वार्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं इंडिया के लिए. यानी द ग्रोथ इन द अपकमिंग वुड बी चैलेंजिंग. वाई? पूरे ग्लोब में एक तो जो गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है वो पूरी तरह से इफेक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेनी फैक्टर्स. चाहे आप रशिया यूक्रेन के वॉर ले लीजिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन ले लीजिए, प्लस मॉनसून में जो इस बार पूरा उतार चढ़ाव देखा गया है उसकी वजह से जो क्रॉप्स के फेलियर्स हुए हैं, क्रॉप की ईल्ड में गड़बड़ हुई है, टोमेटो की क्रॉप खराब हुई है, फार्मर्स की इनकम बिगड़ी है. तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्टर्स है जिसकी वजह से अपकमिंग क्वार्टर्स में एक चैलेंजेस जो है देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप ग्रोथ की टर्म्स में बात करते हैं. फार्म सेक्टर का अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में बात करते हैं तो इट हैज मेंटेन इट्स ग्रोथ पेस टू राइज 3.15% द क्वार्टर वन, but may taper off thanks to the monsoon step. The headline growth rate, देखो headline. I'm giving you homework. You have to find the difference between the inflation and the headline inflation. कि inflation क्या होता है, headline inflation क्या होता है, and what is food inflation. ठीक है? So the headline growth rate for the services sectors were robust. Trade, hotels, transport rose 9.2%, but in absolute terms, the employment-intensive segment remained 1.9% below the pre-COVID levels, indicating the recovery still incomplete. लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, that while the government has been asserting that private investment cycle has finally taken off, the gross fixed capital formation trends indicate it is a still government capital spending that is doing the heavy lifting. Manufacturing GVA grew for the second successive quarter of the 6 months. जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 6% तक बढ़ा. तो कितना करंटली स्पीक आपको दिखेगा ग्रोथ के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर, ये सब उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि स्पेशली फूड आइटम्स हो गए उन सब के ऊपर. तो एक फीबल रिकवरी जो रूरल डिमांड में देखी जाएगी, और ये भी हो सकता है फार्म इनकम से वो आए, इंटरवेंशन जो हो सकते हैं काउंटर इन्फ्लेशन को लेकर. देयर आर मेनी फैक्टर्स एक्चुअली. तो अभी जब अक्टूबर के अंदर आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर आपको ये पता चलेगा. ठीक है. Now, China's economic slowdown.
वी ऑल नो कि चाइना के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो रही है। अभी पिछली स्लाइड में ही हमने देखा दैट द ग्रोथ इज 6.3%, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम है इंडिया के कंपेयर। यानी इंडिया के अंदर ये जो ग्रोथ हो, सॉरी चाइना के अंदर ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है वो कम हो रही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना प्रेजेंट इकोनॉमिक चैलेंज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में काफी लंबे टाइम तक स्लो डाउन और मिडिल इनकम ट्रैप जैसी सिचुएशंस आ रही, और अभी डर है कि वहां पे डिफ्लेशन भी देखने के लिए मिलेगा। एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन, दैट इज प्राइसेस में कमी। तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत बुरा हो सकता है, बिकॉज पूरी दुनिया आज ग्लोबलाइज कंट्री में है। मोस्टली आइटम्स चाइना से आ रहे हैं। ठीक है, अगर चाइना से आ रहे हैं, डिफ्लेशन हो रहा है, प्राइस कम होगी, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल चेन इफेक्ट होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबको खतरा हो सकता है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। इंडिया को भी यहाँ पे जो है डेंजर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एवरीवन इज ट्राइंग टू असिस्ट, ट्राइंग टू जस्ट ग्रास्प व्हाट इज दिस इशू ऑल अबाउट। So speaking at the National People's Congress in 2007, then Premier Wang Jiabo had cautioned that the biggest problem with China's economy is that growth is unstable. 2007 में ही उन्होंने ये बताया था, कंसर्निंग बताया था दैट इंडिया की ग्रोथ अनस्टेबल है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है, लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, क्योंकि उस वक्त चाइना का मॉडल था कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए ग्रोथ करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ग्रोथ जो है लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। जिस तरह से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो मॉडल ये लोग अपना रहे हैं, ये नॉट सस्टेनेबल, इट इज नॉट सस्टेनेबल। It was expected that some form of course correction would be undertaken in the subsequent period. However, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिला था, जहाँ पे चाइना चोज द स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो 2008 के अंदर रिसेशन देखने के लिए मिला, ग्लोबल स्लो डाउन था। ऐसे टाइम पे चाइना ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, जैसे कि और रेलवे है, हाईवेज है, जगह जगह उन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो है बनाने स्टार्ट कर दिया। So it had stopped the core problem of lack of consumption, regional inequality, lack of social security. So why it did was simple, because the domestic legitimacy of leadership in the China is dependent on creating prosperity and make it available to a greater number of citizens year on year. However, यहाँ पे जी जिनपिंग को लेके काफी बोला जा रहा है कि इन न्यू नॉर्मल द ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है उसमें कहीं ना कहीं पीपल का जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो उनके लिए इजी हो गया था करने के लिए, इट वॉज कम्प्लीटली पॉलिटिकल चॉइस, बट बिकॉज ऑफ दैट दिस मॉडल इज बेसिकली नॉट सस्टेनिंग। आज चाइना बहुत ही ज्यादा सीरियस स्लो डाउन के अंदर है। ओके, तो this is the crux of the editorial. You don't have to go in detail the data कि कौन से किस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा लगाया था। And regarding this, altering the status quo of the Jammu and Kashmir, please do watch my last video. इसमें ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में बता रखा है, आप प्लीज उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको और उसमें समझना है कुछ, आप मुझे बताइए, मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, स्लाइड्स जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइकिंग आवर वीडियो, प्लीज टू सब्सक्राइब इट and just like and share. It will ease for the students for the UPSC journey. Thank you so much.